that's for many people to say. I would like it to be like that. But I wouldn't want to comment on it at this stage. I can see very clearly signs of revival and good signs of revival. Otherwise, my revenue collection wouldn't be where it is, both the GST and direct taxation. You know, you're in the media, you would have read reports that the half-yearly target has already been achieved in direct tax. And GST's collection on an average per month is somewhere in the region of 1,11,000, 1,12,000. Probably it can be safely said it will be somewhere in the range of 1,15,000 per month. These are not small indicators. These are not some sporadic indicators. They clearly show that the economy is on a sustained path of revival. See, I will have to first of all put a rider to my answer. You're asking me to compare and contrast, and I don't know whether you said it deliberately about Haryana first, and then when you said about Punjab, you said non-BJP. So I am not giving an answer to... No. I'll answer to explain it because I don't want anybody misreading my answer. I'm not doing a compare and contrast. Each state has its own strength. Each state has its own challenges. So I'm not trying to compare one state with another. Every state has its own strength and challenges. So first of all, Haryana, I must say, is one of those states, and I measure it with certain concrete points. Haryana is one of those states which is absolutely consciously managing its fiscal very well. I'm not saying it because I'm sitting here, I have Haryana ministers here, and like you say, it's BJP state. I'm not saying for that. Honestly, I think... Can you hear me without the mic also? So, honestly, I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? No. I'll use one indicator. During Corona, and this is not to say that which state did this and that which state didn't do that, like that. But I'm using that as an indicator to say, every state's borrowing capacities were given widened. We increased the scope of borrowing. Haryana is one state which did not utilize its borrowing additional capacities that we gave. They thought we'll be able to manage, we'll manage, and they managed without borrowing additionally. No harm in borrowing additionally, because if you have activities for which you need fund, you will do it. But and as a curiosity, I even had a quick word with the Honorable Chief Minister. He even said, no, we didn't require to borrow. He had his finance officials also with him. They didn't require. And that is also something which I was aware of even before coming here. So yes, Haryana is managing its fiscal matters very well. One. Pawanji, Wait, I have not finished his answer. I have not answered his question. उनका जवाब पूरे नहीं दिया जी. वो खत्म करने के बाद मैं आपके पास आती. वो एक प्रश्न. Second में second half में पहले बोलती हूँ. बॉर्डर एरियाज के लिए 60-40, 90-10, ये सब, my हिंदी is bad. मैं हिंदी में एक शब्द उपयोग करती हूँ, मगर उसका सही तरीके से आप ले लो. बहुत अच्छी है जी हिंदी. किसी का मनमानी से नहीं चलता ये सब. कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं, और वो फॉर्मुलेशंस इसीलिए होते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन हिली स्टेट्स, इनके लिए रेशियो थोड़ा अलग होता है, जो कि स्टेट का फेवर में रहना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सेस का मामला बहुत कठिन है, इसीलिए उसका 90-10. इसीलिए नहीं है कि पंजाब को पनिश करना, नहीं. पंजाब और बाकी सब स्टेट्स का 60-40 है. और ये केंद्र सरकार मनमानी से नहीं तय किया. It has been a recommendation of the Finance Commission. ठीक है, वो सेकंड आपका हो गया. कुछ बचा है? पवन जी पूछना है.
पवन जी बोलो। हाँ नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, एक मिनट जी, एक मिनट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं नहीं, डोंट मिक्स अप टू। वन इज द रूरल डेवलपमेंट फंड विच इज नॉट पार्ट ऑफ द जीएसटी। जीएसटी का सेटलमेंट नहीं, एक मैं डील करने के वक्त मेरे मन के लिए मैं दोनों अलग कर रही हूं। आपके मन में है अलग कर दिया आप, ठीक है, मैं अलग कर रही हूं। हाँ, उसमें जीएसटी का सेटलमेंट में कोई एडिशनली पंजाब के लिए बाकी नहीं रखी हूं जी। जितना 43rd काउंसिल जीएसटी में अग्री हुआ एक फॉर्मूला के तहत, उतना ही सभी स्टेट का प्रोपोर्शन नहीं दिया गया। वो जुलाई 22 में सेस कलेक्शन के द्वारा होगा। मगर जो मैं पंजाब के लिए एक विषय, आई वांट टू से, पंजाब के लिए मैंने की, वो जरूर जिक्र करूंगी। एक उनका जीएसटी के शुरुआत में बेसिस ईयर होता है जिसके ऊपर कैलकुलेशन होते हैं 2015-16 उसका असेसमेंट में पंजाब की तरफ से कुछ ऊपर नीचे हुआ, फिर उसका सीएजी के द्वारा करेक्शन हुआ, फिर उसका करेक्शन होने के बाद केंद्र सरकार में आया। ऐसे सब फ्रॉम देयर एंड बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन डिफिकल्टीज लेट पहुंचा मामला। इस बीच में लोअर लेवल के ऊपर उनका जीएसटी का पेमेंट चलते आए। मनप्रीत जी बादल मिनिस्टर met me in 2019 and told me there is a problem. मैं उसमें पर्टिकुलरली ध्यान दे करके ओवर 1400 समथिंग अमाउंट मैंने क्लियर किया पंजाब के लिए। सो पंजाब के लिए नेगेटिव नहीं, कम नहीं, पंजाब के लिए एडिशनल एफर्ट करके उनके पैसे मैंने क्लियर किया जीएसटी में, उसको प्लीज रिकॉग्नाइज करो। नहीं, ऑपोजिशन लगातार गिर रहे हैं की बात ना, आप प्लीज उसके, ऑपोजिशन के रोल होता है सरकार को कटघरे में खड़े रखना, प्रश्न पूछना। उनका जवाब मैंने खत्म नहीं किया, मतलब उनको जवाब देना नहीं है, ठीक है। नहीं, सो जीडीपी का ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि कोरोना के बाद हम देख रहे हैं रिवाइवल हो रही है और सब जगह का रिवाइवल सही होना है, इसीलिए आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम टू इवन टॉक अबाउट इट। मगर ऑपोजिशन ये बोल रही है, वो बोल रही है, ठीक है, वो ऑपोजिशन है, बोलने दो जी। नहीं, बढ़ाने, डबल करना किसानों के आमदनी इस 100% हमारी कमिटमेंट है, उसके लिए काम हो रही है। और किसान के चाहे वो उनके खेती से जो आ रही है उसका रिटर्न्स ज्यादा हो या ऑल्टरनेटिव कुछ सोलार उनके दिया जा रहा है, उनका एडिशनल इनकम करने के लिए उनका डेयरी का या कुछ और खेती में ही ऑन द रिज ग्रोइंग ऑफ वेरी वैल्यूएबल ट्रीज, बहुत सारे ऐसे किसान के लिए उनके अपने जमीन के व्हाट यू कॉल टोपोग्राफी को मन में रखते हुए जो भी एडिशनल इनकम का एवेन्यूज जोड़ते हम जा रहे हैं, उससे हमारे पूरे भरोसा है कि जरूर किसान के आमदनी दुगनी होगी। आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मिडिल क्लास का डिस्क्रिप्शन आपके मन में क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं हो रही है। एक मिनट। मिडिल क्लास इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए उनका इंटरेस्ट रेट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन, उनको इनकम टैक्स में उसका सर्टन टू सम एक्सटेंट दे आर गिवन रिलैक्सेशन। सीनियर सिटीजन्स के लिए वयोवंदना योजना के द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन। And also during the corona, for all those who have lost jobs, 15,000 rupees or lesser if they are earning, we have given through the EPFO
schemes so that they can be taken back. That taken back was only up to this year March, this year June, then now it has been extended to next year also, 2022 March tak. So I can list out every such thing which, even for that matter, there are people who belong to middle class but are doing other works, for whom through their banks we are also giving benefits. And as it is, a lot more need to be done for rejuvenating employment, but the data currently available shows that recruitments have all started again. People are going back to work. Whether it is pre-COVID or even better than COVID is not something I want to get into now, but attention is being paid so that people can get back to the jobs. So it is middle class ka varnan or also jobs, दोनों में there are replies that I can give. असर जरूर पड़ा, कितना का विवरण मेरे हाथ में रेडी नहीं है, मैं जरूर दिलाऊंगी, धनखड़ जी को दूंगी, आपको पहुंचाएंगे. Definitely a control over fake currency was brought in. फेक करेंसी कंट्रोल करने में, क्योंकि वो एक डिनोमिनेशन का नोट, 2 डिनोमिनेशन का नोट पूरा सिस्टम से हटाया गया, उसके तहत जरूर ब्लैक मनी और such fake currency, particularly in the northern regions which was coming in and also the eastern regions where they were coming in, have all definitely been stopped. Whether now newer fake currency is coming or not, वो अलग चर्चा है, मगर जरूर वो बात. दूसरा, that it had a bearing on terrorism funding was also some of the things which have been observed being controlled post that. So दोनों इन बातों के ऊपर जो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा एक्शन हुआ, उससे जरूर पॉजिटिव असर पड़ा है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब भी जीएसटी लागू करने के समय ही पेट्रोल और डीजल को कानूनन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है. It's already made. There is a provision made in the GST law that petrol and diesel can be in GST. And having brought it in, अभी काउंसिल जब भी तय करेगा इतना रेट में आना है, वो रेट निर्णय होने के बाद वो भी आसानी से जोड़ जाएगा. So there is no new amendment or anything like that to be made in the GST law for petrol and diesel. मगर काउंसिल तय करना है कि कब ले आना है, कितने रेट पर ले आना है. जब काउंसिल मैं बोलती हूं, उसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे काउंसिल में जितने भी मेंबर्स है वो सब तय करेंगे. सो कोई एक सेक्शन, मतलब सेंटर या स्टेट, कोई एक सेक्शन इसको रोक नहीं रहा, मगर उचित समय में सबके सहमति से ले आना जीएसटी का काम है. नहीं, कम करना और ज्यादा करना इस मैटर विच अराइजेस ओनली आफ्टर जीएसटी में इसका एक स्थान मिलने के बाद ही ना. जो आइटम जीएसटी में है इतने पर है, उसके ऊपर कम ऊपर करने का चर्चा तब होगा जब ऑलरेडी ये अंदर आ गया. अभी तो अंदर नहीं है. शेयर मार्केट का विषय में, मार्केट हैज इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट डील्स विद कंपनीज. इसमें हम ये ना बोलें कि आजकल कंपनीज लिस्टिंग और रेगुलेशन के अंदर जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आया है, लिस्टेड कंपनीज का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका बोर्ड्स का डिसीजन है और एनुअल अकाउंट रजिस्टर करना, ये सब रिकॉर्ड करना, ये सब फेयरली ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्रोसेस. और मार्केट का रेगुलेशन सेबी के द्वारा और जहां नेसेसरी कुछ और रेगुलेटर के द्वारा भी ठीक से एकदम स्पष्ट सबको दिखाई दे रही है. एज अ रिजल्ट आज रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में रुचि लेकर के उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा.
पहले था कि म्यूचुअल फंड के रास्ते में जाते थे, अभी म्यूचुअल फंड के रास्ते में भी जा रहे हैं और सीधा वो जाकर के मार्केट से उनके डीमैट अकाउंट के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए आज स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, रिटेल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। एज अ रिजल्ट, कॉन्फिडेंस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट